Okay, students, let's begin our story. You remember that in the previous session, the three characters were talking with each other on the topic of devoted friend, and then Lynette uh, said that he would tell them a story on the topic of the devoted friend, and they all became interested. Lynette started his story in this way. Once upon a time, said the linnet, there was an honest little fellow named Hans. Fellow means आदमी कि एक दफा का जिक्र है कि कहीं पर एक आदमी रहता था, उसका नाम हांस था. डिस्टिंग्विश मीन्स मशहूर, कि क्या वो बहुत ही मशहूर था, सब लोग उसे जानते थे. आपको मालूम है कि लोग जब कोई कहानी सुनते हैं तो वो बीच में जो है किसी वाक्य के बारे में या किसी कैरेक्टर के बारे में कोई क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और बिल्कुल वैसे ही वाटर रैट ने पूछा कि वाज ही वेरी डिस्टिंग्विश्ड. नो, आंसर्ड द लिनेट. आई डोंट थिंक ही वाज डिस्टिंग्विश्ड एट ऑल, except for his kind heart and his funny, round, good humored face. He lived in a tiny cottage all by himself. All by himself means अकेला. एक छोटी सी कॉटेज में रहता था all by himself, and every day he worked in his garden. In all the countryside there was no garden so lovely as his. Sweet williams grew there, and gillyflowers, and shepherd's purses, and fair maids of France. There were damask roses, and yellow roses, lilac crocuses, and gold, purple, violet, and white columbine, and lady's smoke, marjoram, and wild basil. Cowslip, and the flower de luce, the daffodils, and the clove pink bloomed or blossomed in their proper order as the month went by, one flower taking another flower's place. उस गांव में उसका उसका बाग जो था वो हमेशा फूलों से भरा रहता था, और ये सारे फूलों के नाम है जो कि उसने यहाँ पर गिनवाए हैं कि मुख्तलिफ किस्म के फूल जो थे वो अपने रंग का रंग कलर्स के साथ और अपनी खुशबुओं के साथ एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा वहां पर खिलते रहते थे. सो देयर वर ऑलवेज ब्यूटीफुल थिंग्स टू लुक एट एंड प्लेजेंट ओडोर टू स्मेल. ओडोर से मुराद है बू, और प्लेजेंट ओडोर का मतलब है खुशबू, अच्छी महक. लिटिल हांस हैड अ ग्रेट मैनी फ्रेंड्स, but the most devoted friend of all was big Hugh the miller. Indeed, so devoted was the rich miller to little Hans that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay or a handful of sweet herbs, or filling his pockets with plums and cherries if it was the fruit season. Whenever he would go by his garden, go by का मतलब करीब से गुजरना, तो जब भी वो उसके बाग के करीब से गुजरता था, he would never go by his garden without leaning over the wall. lean का मतलब झुकना, और and plucking a large nosegay. nosegay का मतलब गुलदस्ता. तो वो हमेशा जब भी उसके बाग के करीब से गुजरता था तो बहुत से फूल उसके गार्डन से तोड़ लिया करता था और उनका गुलदस्ता बनाकर वो अपने घर ले जाया करता था. आखिर वो उसका डिवोटेड फ्रेंड था, तो हमेशा जो है वो जब भी उसके करीब से गुजरता था तो वो ये सारी चीजें लेकर जाता था. रियल फ्रेंड्स शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन, द मिलर यूज्ड टू से, and little Hans nodded and smiled and felt very proud of having a friend with such noble ideas. Nodded means सर हिलाना, कि जब भी वो कहता था कि सच्चे दोस्तों में हर चीज कॉमन होती है, एक जैसी होती है, तो यहाँ पर जो है हांस बहुत खुश हुआ करता था और वो मुस्कुराया करता था और अपना सर हिलाता था, बिकॉज ही यूज्ड टू फील वेरी प्राउड ऑफ फॉर हैविंग अ फ्रेंड लाइक हांस, कि जिसके इतने नोबल आइडियाज थे. Sometimes indeed the neighbors thought it very strange that the rich miller never gave little Hans anything in return, though he had 100 sacks of flour stored away in his mill, and 6 milch cows, and a large flock of woolly sheep. But Hans never troubled his head about these things. Trouble माने परेशान होना या करना. So Hans never troubled his head. हांस कभी भी जो है अपनी सोचों को या अपने जहन को परेशान नहीं किया करता था इस किस्म के ख्यालात से, जैसा कि लोग सोचते थे कि कितनी अजीब बात है कि
मिलर तो हमेशा उसके बाग से कुछ ना कुछ लेकर जाता है, लेकिन बदले में कभी भी उसने कुछ भी हांस को नहीं दिया। अगरचे उसके पास जो हैं 106 फ्लोर हैं, उसके पास 6 मिल्च काउज हैं। मिल्च काउज मीन्स दूध देने वाली गाय, एंड लार्ज फ्लॉक ऑफ वूली शीप, और एक बहुत बड़ा रेवड़ भी है उसके पास भेड़ों का। But Hans never troubled his head about these things, and nothing gave him greater pleasure than to listen to all the wonderful things that Miller used to say about the unselfishness of true friendship. So nothing gave him greater pleasure. किसी कोई भी चीज़ उसको इससे ज़्यादा खुशी नहीं देती थी जितनी उसको हांस के अजीम ख्यालात सुनकर होती थी, जो कि वो फ्रेंडशिप की अनसेल्फिशनेस के ऊपर बयान करता था। अनसेल्फिशनेस का मतलब कि बेलॉस दोस्ती के बारे में जो उसके ख्यालात थे, हांस उसको सुन के बहुत मुतासिर हुआ करता था। So little Hans walked away in his garden during the spring, the summer, and the autumn. He was very happy. But when the winter came, he had no fruits or flour to bring to the market. He suffered a good deal from cold and hunger, and often had to go to bed without any supper but a few dried pears or some hard nuts. He was extremely lonely in winter, as the miller never came to see him. There's no good in my going to little Hans as long as the snow lasts, the miller used to say to his wife. For when people are in trouble, they should be left alone and not be bothered by visitors. सो दिस वॉज द रीजन, ये है वो फिलॉसफी जो कि मिलर जो है दिया करता था कि सर्दियों में जब हांस इतना तन्हा और अकेला हो जाता था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं होता था और कोई उसे मिलने भी नहीं आता था, तो उस वक्त मिलर के मुताबिक उससे अपने दोस्त के पास नहीं जाना चाहिए। जैसा कि वो कहता है कि देयर इज नो गुड इन माय गोइंग टू सी लिटिल हांस। देयर इज नो गुड, नो गुड मींस कोई फायदा नहीं है मेरा अब लिटिल हांस से मिलने का। एज लॉन्ग एज द स्नो लास्ट, जब तक कि बर्फबारी हो रही है। लास्ट का मतलब किसी चीज का चलना। सो एज लॉन्ग एज, जब तक बर्फबारी हो रही है, देयर इज नो गुड इन माय गोइंग टू सी लिटिल हांस, द मिलर यूज्ड टू से to his wife, for when people are in trouble, they should be left alone and not be bothered by visitors. कि लोग जब तकलीफों में हो, परेशानी में हो, तो विजिटर्स को उनके घर में जाकर मजीद उनकी परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहिए। मेहमानों को उनके घर नहीं जाना चाहिए। सो दे शुड नॉट बी बॉदर्ड। बॉदर का मतलब परेशान करना। दे शुड बी फेल्ट अलोन एंड नॉट बी बॉदर्ड बाय विजिटर्स. That at least is my idea about friendship, and I'm sure I'm right. So I shall wait till the spring comes, and when I shall pay him a visit, and he will be able to give me a large basket of primroses, and that will make him so happy. जब जब तक कि बाहर का मौसम नहीं आता, मैं इंतज़ार करूंगा, और जब बाहर का मौसम आएगा, आई शैल पे हिम अ विजिट. पे हिम अ विजिट मीन्स किसी के घर जाना, तो मैं उसके घर जाऊंगा, एंड इट विल मेक हिम वेरी हैप्पी व्हेन ही विल गिव मी प्रिम रोजेज. और जब वो मुझे प्रिम रोजेज देगा, एक बड़ी बास्केट प्रिम रोजेज की देगा, तो फिर जो है उसको खुशी होगी. तो ये है ह्यू द मिलर का नजरिया दोस्ती के बारे में, कि दोस्तों के साथ आप तब मिले जब वो आपको कुछ दे सकें, ताकि दोस्तों को कुछ खुशी भी हो आपसे मिलने की. You are certainly very thoughtful about others, answered the wife, as she sat in her comfortable armchair by the big pine wood fire. You are certainly very thoughtful about others. तो वाकई ही दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो. जो मिलर की वाइफ है, उसने कहा, जो कि बैठी हुई थी कंफर्टेबल आर्म चेयर में और बिग पाइन वुड फायर के करीब. वेरी थॉटफुल इंडीड. वाकई तुम बहुत सोचते हो दूसरों के बारे में. इट इज क्वाइट अ ट्रीट टू हियर यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप. और दोस्ती के बारे में तो तुम्हारे ख्यालात को सुनना जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत तजर्बा है. इट इज क्वाइट अ ट्रीट का मतलब कि ये बहुत ही लुत्फ की बात है जब तुम दोस्ती के बारे में बात करते हो. आई एम श्योर द क्लर्जी मैन हिमसेल्फ कुड नॉट से सच ब्यूटीफुल थिंग्स एज यू डू. क्लर्जी मैन मीन्स पादरी. कि चर्च का पादरी भी जो है वो इतनी खूबसूरत बातें नहीं कर सकता जैसी तुम करते हो. दो ही डज लिव इन अ 3-storied हाउस and wear a gold ring on his little finger, that he is also a very rich man, just like you, but उसके बावजूद जो है उसके पास भी इतने खूबसूरत ख्यालात नहीं है दोस्ती के बारे में जैसे कि आपके पास है. अब इस पर जो है लिटिल हांस का बेटा कहता है कि बट कुड वी नॉट आस्क लिटिल हांस अप हियर, कि क्या हम लिटिल हांस को यहाँ नहीं बुला सकते. सेड द मिलर्स यंगेस्ट सन.
If poor Hans is in trouble, I will give him half my porridge and show him my white rabbits. अगर लिटिल हांस प्रॉब्लम में है तो मैं उसके साथ अपना आधा पोरिज शेयर करूंगा और उसको मैं अपने व्हाइट रैबिट्स जो है दिखाऊंगा। ह्यू द मिलर का बेटा जो कि एक मासूम बच्चा है, वो इस किस्म के ख्याल रखता है कि हांस को यहाँ पे बुलाना चाहिए ताकि हम उसके साथ अपनी चीजें शेयर कर सकें। What a silly boy you are, cried the miller. I really don't know what is the use of sending you to school. You seem not to learn anything. Why, if little Hans came up here and saw our warm fire and our good supper and our great cask of red wine, he might get envious. And envy is a most terrible thing and would spoil anybody's nature. I certainly will not allow Hans' nature to be spoiled. I am his best friend and I will always watch over him and see that he is not led in any temptation. Besides, if Hans came here, he might ask me to let him have some flour on credit, and that I could not do. Flour is one thing, and friendship is another, and they should not be confused. Why? The words are spelt differently and mean quite different things. Everybody can see that. अब यहाँ पर ह्यू द मिलर अपने बेटे को डांटता है कि व्हाट अ सिली बॉय यू आर, कि तुम कितने अहमक और नालायक बच्चे हो। I really don't know what the use of sending you to school. You seem not to learn anything. मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ सीख रहे हो स्कूल से। Why? हाँ, अब देखें यहाँ पर why जो है इसका मतलब हाँ की सेंस में आप लेंगे। जैसे कि आप बात करते किसी को कहते कि हाँ, वैसे ही वो कहता है कि हाँ, if little Hans came up here, कि अगर little Hans यहाँ पर आता है and saw our warm fire and our good supper and our great cask of red wine. Cask means वो जो ड्रम है उनका रेड वाइन का, जो कि वो सर्दियों में पीते हैं जस्ट टू कीप देमसेल्व्स वार्म. ही माइट गेट एनवियस. तो ये सारी चीजें देखकर तो वो हम पर रश्क करना शुरू कर देगा, हसद करना शुरू कर देगा, हो सकता है हमसे. एंड एनवी इज अ मोस्ट टेरिबल थिंग. और हसद और रश्क जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है. एंड वुड स्पॉइल एनीबॉडीज नेचर. और इससे लोगों की फितरत खराब हो जाती है. आई सर्टेनली वुड नॉट अलाउ हांस नेचर टू बी स्पॉइल्ड. आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड एंड आई विल ऑलवेज वॉच ओवर हिम. मैं उसका बेहतरीन दोस्त हूं और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा. वॉच ओवर का मतलब नजर रखना या ख्याल रखना. एंड सी दैट ही इज नॉट लेड इनटू एनी टेम्पटेशन, कि वो किसी लालच में मुब्तला ना हो जाए. टेम्पटेशंस का मतलब लालच. बिसाइड्स मींस इसके अलावा. तो कहता है कि besides if Hans came here, he might ask me to let him have some flour on credit, and that I could not do. कि वो हो सकता है यहाँ पर आए और मेरा इतने सारे जो हैं sacks of flowers देखें तो वो मुझे कहे कि यार मुझे थोड़ा सा आटा तो दो उधार पर. Credit, on credit means उधार पर. And that I could not do. और मैं ऐसा नहीं कर सकता. Flour is one thing and friendship is another thing, and they should not be confused. इन दोनों चीजों को आपस में, आटा एक चीज है और दोस्ती दूसरी चीज है, इनको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. अब देखें यहाँ पर वाई का मतलब क्या है. हाँ, यहाँ पर यानी कि वाई से वो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बल्कि जो है ये वाई जो है उसकी फीलिंग्स के इजहार के लिए यूज हो रहा है कि वाई द वर्ड्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली. हाँ, देखो कि दोनों लफ्जों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है. एंड मीन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स. एवरीबडी कैन सी दैट. हर एक ये चीज देख सकता है, हर एक को ये चीज समझ आती है. एवरीबडी कैन सी दैट. हर एक को ये बात समझ आती है. अब यहां पर सी का मतलब है समझ आना. दैट फ्लावर इज वन थिंग एंड फ्रेंडशिप इज अनदर थिंग एंड दे शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड. हाउ वेल यू टॉक. कितना खूबसूरत बोलते हो तुम, मिलर की वाइफ ने कहा. पोरिंग हरसेल्फ आउट अ लार्ज ग्लास ऑफ वार्म एल. एल इज अ काइंड ऑफ वाइन. एल जो है शराब है, तो वो जो है वो ग्लास में शराब भरते हुए कहती है कि कितना तुम खूबसूरत बोलते हो. Really, I feel quite drowsy. It's just like being in church. Oh, मुझे तो नींद आना शुरू हो गई तुम्हारी बातें सुन सुन के. ऐसा लगता है कि जैसे मैं चर्च में बैठी हुई हूँ. अब देखिए इन सारी बातों में मजहबी लोगों के ऊपर कितना गहरा तंज है कि क्लर्जी मैन जो है, जो कि बहुत अमीर है और एक बहुत ही खूबसूरत अंगूठी भी पहनता है और उसके अलावा जो है वो 3 स्टोरीड 3 मंजिला घर में रहता है, वो भी इतना खूबसूरत नहीं बोल सकता है. और दूसरा ये कि मैं तो ऐसा लगता है जैसे चर्च में बैठी हुई हूँ और मुझे तो नींद आना शुरू हो गई है. यानी कि कुछ इस तरीके से लोग जो हैं मजहब को भी लिया करते थे कि बस उनकी बातें जो थी उनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करती थी और वो उन अच्छी अच्छी बातों को सुनकर बजाय इसके कि मुतासिर हों और अपने आप को तब्दील करें,
महसूस करते थे कि जैसे उनको नींद आ रही है, और आप उन्हीं चीज़ों पर ड्राउजी महसूस करते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट ना हो। तो इट इज़ जस्ट लाइक बीइंग इन चर्च। लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल, बहुत से लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, आंसर द मिलर, बट वेरी फ्यू पीपल टॉक वेल, लेकिन बहुत कम लोग अच्छा बोल सकते हैं। विच शोज दैट टॉकिंग इज मच द मोर डिफिकल्ट थिंग ऑफ द टू, जिससे लगता है कि टॉकिंग दोनों में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर जो है वो कहता है कि एंड मच मोर द फाइनर थिंग टू, और दोनों चीजों में सबसे ज्यादा फाइनर यानी कि नफीस चीज भी है टॉकिंग। एंड ही लुक्ड sternly across the table at his little son, who felt so ashamed of himself that he hung his head down and grew quite scarlet and began to cry into his tea. और उसने जो है ये कहकर जो है बहुत ही गुस्से से, sternly means गुस्से से जो है अपने बेटे की तरफ देखा जो कि टेबल के दूसरी तरफ जो बैठा हुआ था। who felt so ashamed, जिसे इतनी शर्म आई, who felt so ashamed, जिसे इतनी शर्म आई कि उसका बेचारे का चेहरा लटक गया, और he hung down his head, उसने अपना सर झुका लिया, and grew quite scarlet, scarlet कहते हैं रेड कलर को, तो वो जो है बेचारा शर्म से लाल हो गया, and began to cry, और उसके आंसू निकलना शुरू हो गए। However, he was so young that you must excuse him, लेकिन वो बहुत छोटा बच्चा था, लिहाजा यकीनन आपको उसे माफ कर देना चाहिए कि उसे नहीं पता है कि आटा एक चीज है और दोस्ती दूसरी चीज है, और इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। इज दैट द एंड ऑफ द स्टोरी, आज द वाटर रेड। वाटर रेड कहता है कि अच्छा तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब लोग कहानी सुनते हैं तो बीच में बाज औकात क्वेश्चंस भी करते हैं, तो देखिए ये भी एक खूबसूरत एलिमेंट है इस कहानी का कि बीच में कैरेक्टर्स लिनेट से सवाल करते रहते हैं, जिससे पता लगता है कि दिस इज अ स्टोरी इनसाइड द स्टोरी, कि ये कहानी के अंदर एक कहानी बयान की जा रही है और इस कहानी को बयान करने वाला लिनेट है। Certainly not, answered the linnet. That is the beginning. Then you are quite behind the age, said the water rat. जब लिनेट ने कहा कि नहीं भाई अभी तो मेरी कहानी शुरू हुई है, तो वाटर रैट कहता है कि फिर तो भाई तुम वक्त से बहुत पीछे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कहानी सुनाने के फन में कितनी तब्दीलियां आ चुकी हैं। Every good storyteller nowadays starts with the end and then goes on to the beginning and concluded with the middle, कि आजकल तो जो अच्छे कहानी सुनाने वाले हैं वो अंजाम जो है कहानी का, इख्तिताम कहानी का पहले सुना देते हैं और उसके बाद वो बिगनिंग पर आते हैं कि ये कहानी शुरू कैसे हुई थी, और उसके बाद जो है मिडल में यानी कि कहानी के हाफ में लाकर जो है वो उसको खत्म कर देते हैं। दैट इज द न्यू मेथड, ये है नया कहानी सुनाने का तरीका। आई हर्ड ऑल अबाउट इट द अदर डे फ्रॉम अ क्रिटिक who was walking around the pond with a young man. He spoke of the matter at great length, and I am sure he must have been right, for he had blue spectacles and a bald head, and whenever the young man made any remark, always answered puh। ये तरीका जो है मैंने एक क्रिटिक से सुना है, जो कि अभी एक कुछ दिन पहले ही जो है वो इस बाग के अंदर अपने एक शागिर्द के साथ घूम रहा था, और वो कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये क्रिटिक जो था ये बिल्कुल सही था, क्योंकि उसने ब्लू कलर के स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे, चश्मा पहना हुआ था, और उसका सर भी गंजा था, और जब भी जो है उसको कोई दूसरा आदमी अपनी बात सुनाता था तो वो आगे से उसकी बात को झटक दिया करता था पुह कहकर। बट प्रे गो ऑन विद योर स्टोरी, लेकिन कहता है कि बराए मेहरबानी, प्रे मीन्स बराए मेहरबानी, प्रे का मतलब यहाँ पर दुआ करना नहीं है बल्कि बराए मेहरबानी। तो कहता है कि लेकिन बराए मेहरबानी आप अपनी कहानी जो है जारी रखें। आई लाइक द मिलर इमेंसली, मुझे ये मिलर का किरदार बहुत अच्छा लगता है। इमेंसली माने बहुत ज्यादा, तो आई लाइक द मिलर इमेंसली। आई हैव ऑल काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल सेंटिमेंट्स, कि जैसे मिलर के पास अजीम ख्यालात हैं, मैं भी जो हूँ वैसे ही ब्यूटीफुल सेंटिमेंट्स रखता हूँ। सो देयर इज अ ग्रेट सिंपैथी बिटवीन अस, सो हम दोनों में काफी सिंपैथी है। अब यहाँ पर सिंपैथी से मुराद मुशाबहत है। वेल सेड द लिनेट हॉपिंग नाउ ऑन वन लेग एंड नाउ ऑन द अदर। अब देखें ये भी एक कितनी खूबसूरत मंजर कशी है कि आपने कभी गौर किया होगा कि बाज़ औक़ात परिंदे जब खड़े हुए होते हैं तो कभी वो अपनी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, कभी दूसरी टांग पे खड़े हो जाते हैं, तो ये जो अमल है इसको आप हॉप कहते हैं, HOP हॉप। तो हॉपिंग नाउ ऑन वन लेग एंड नाउ ऑन द अदर, कभी एक टांग पर खड़े होते और कभी दूसरी टांग पर खड़े होते हुए लिनेट कहता है कि as soon as the winter was over and the primroses began to open their pale yellow stars, the miller said to his wife that he would go down and see little Hans, कि जैसे ही सर्दियां खत्म हुई
और प्रिमरोजेस खिलना शुरू हुए तो मिलर ने कहा कि भाई वो अब अपने दोस्त हांस से मिलने जाएगा। वाई व्हाट अ ग्रेट हार्ट यू हैव। अब देखिए यहाँ पर अगेन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वाई का मतलब जो है क्यों की सेंस में नहीं लिया जाएगा। वाई का को जो है आप कहेंगे कि हाँ कितने अच्छे आदमी हो तुम, वाई व्हाट अ गुड हार्ट यू हैव, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। क्राइड हिज वाइफ, यू आर ऑलवेज thinking of others, and mind you, take the big basket with you for the flowers.